Okay, so let's start the type of forces. Okay, so type of forces can be divided in two types. The first, the type of forces on the basis of the physical contact between the action reaction bodies. जिन दो बॉडीज के बीच में एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, क्या उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट है या नहीं है ना? और दूसरा, अगर उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो क्या वहां पर एक्शन रिएक्शन फोर्स लग सकता है या नहीं लग सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, the first force is that is muscular force, any push or pull. If you are going to apply a force on any body or any object, you have to touch that body. Without a physical contact, you cannot apply a force because you are not a Shaktiman. Okay? तो तुम यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई तभी कर सकते हो जब आप क्या करो, उस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली टच करेंगे. दैट इज कॉल्ड व्हाट? मस्कुलर फोर्स. द सेकंड पॉइंट इज नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन. These are the three important forces that we have to discuss in detail. ठीक है? So I will start about these forces, but just remember the name. That is the normal reaction, tension force, and friction force. They are also the contact forces. Buoyant force. Buoyant force is also a contact force, which we will discuss in 10th chapter, chapter number 10, where we will discuss about the fluid. है ना? फ्लूइड के बारे में हम लोग इसे पढ़ेंगे. जस्ट रिमेंबर द नेम, दे आर आल्सो द कांटेक्ट फोर्सेस. पूछा नहीं जाएगा एज सच, बट आपको पता होना चाहिए कि आप पूरे फिजिक्स में जितने फोर्सेस पढ़ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स आर दे. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज एयर, fluid, resistance, force, that is called viscous force. In the same chapter we will discuss about the viscous force as well, है ना? viscous force का मतलब होता है the force acting between the layers, और buoyant force का मतलब होता है क्या, कि when a body is partially or fully immersed in a liquid, that liquid will apply a force in upward direction, that is called buoyant force. So these are the two forces that we have already discussed, है ना, कि हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में इसे पढ़ेंगे. तो यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो गया? द फर्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन, द सेकंड इज टेंशन फोर्स, एंड थर्ड इज फ्रिक्शन फोर्स. तो ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ द थ्री: नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड फ्रिक्शन. Okay, now coming to the non-contact forces. The first of all, the force that is called the gravitational force, and this is going to be very important for this chapter only, है ना? ये क्या होता है कि when there are two masses, let's suppose this is mass m1 and this is mass m2, so they will attract each other. The force acting on first due to second and force acting on two due to second. So यहाँ पर पहले वाले पर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? F at 1 due to 2, जो भी है वो किसके बराबर होगा? F at 2 due to 1, और दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? G m1 m2 upon r square के बराबर होता है. तो here just see the direction of forces. This force is acting into this direction, so other force is acting in opposite direction, means F12 F21. So both are acting on two different bodies. This force is acting on this. Let's suppose this is an action force, so this action has a reaction force. Okay, so both the forces are acting on two different bodies. The first force is acting on first and this is acting on the second. So always remember, all the non-contact forces have action reaction, all the contact force has action reaction. Okay, fine. Coming to the next point, that is called electrostatic force. I think you know already about this. Electrostatic, the term electro means the force acting between charges. Let's suppose this is a negative charge, this is a positive charge, both will attract each other, and the attraction force is known as electrostatic force. Okay, now the next point is that is called the magnetic force. So it is what? It is a force acting between the two poles of the two magnets. Let's suppose this is the north pole, south pole, and this is the north pole and this is south pole. So this one pole is going to attract this another pole. Okay, so they will attract each other and they will attract like two action reaction forces. This is called what? Magnetic force. Okay, the next point is that is called what? Nuclear force. What is nuclear force? Within the nucleus what we have? Either proton or neutron. Okay, proton are positively charged and two protons cannot stay in a very small distance, but how they all are concentrated in the nucleus, है ना? सोचो, मान लो अगर हमारे पास ऑक्सीजन की का एग्जांपल लेते हैं, 8 ऑक्सीजन 16,
how many protons are there? 8 protons. Inside the nucleus there are 8 protons, 8 neutrons, है ना? And this nucleus has a very small size. So how all the protons are going to stay in this nucleus? Is the answer is due to the nuclear force. This is a highest or strongest force, है ना, in the universe, that you can say the nuclear force. They actually keep all the nucleons together, and ये nucleons के बीच में लगते हैं, like proton proton के बीच में लगेगा, proton neutron के बीच में लगेगा, neutron neutron के बीच में लगेगा. So always remember, this is called nuclear force. Van der Waals force and interatomic force. The van der Waals force, generally this is a weak force that we know, है ना? और ये क्या करता है, ये किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग सकता है, किन्हीं दो एटम्स के बीच में लग सकता है, जैसा कि इंटरएटॉमिक फोर्स का एक एग्जांपल van der Waals फोर्स भी होता है. तो क्या ये बातें समझ में आई बेटा? There are basically two type of forces that you have to simply remember the name. You have to simply understand whenever they will come into in front of you. कभी भी आता है आपके सामने. What is electrostatic? Just keep the understanding. Okay, but the four important forces: 1, 2, 3, and gravitational force 4. These are very important for this chapter, so we will discuss in detail about them. Okay, now there are two other forces which are actually known as required, and this is known as false. ठीक है, required force का मतलब है requirement is there. For example, जैसे हमने कहा क्या कि if we want to continue the circular motion of a body, so to continue the circular motion of a body, you need to have a centripetal force, a force which is acting towards center. See, okay, so this is what the requirement that we have to provide by any means. This requirement can be provided from any of the above forces. ये जितने भी forces ऊपर देखे किसी भी टाइप के force से प्रोवाइड किया जा सकता है. That is called centripetal force. हम लोग को सर्कुलर चैप्टर पढ़ना है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे भी. और दूसरा क्या होता है? स्यूडो फोर्स. दैट इज अ फॉल्स फोर्स. और ये फोर्स बिल्कुल वही होता है जो आप अगर अपनी गाड़ी में ऐसे जा रहे होते हैं और अचानक से ब्रेक लगने पर जो फोर्स आपको आगे की तरफ लेकर, जैसे अभी जिराफ को आगे की तरफ लेकर जा रहा था, उसे आपने कहा था क्या सर, दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया. बिल्कुल सही बात है, इनर्शिया की वजह से है. बट definitely if the body is moving forward, there is some force, and that force is known as pseudo, pseudo force. ठीक है, so we'll discuss about the pseudo force as well. So pseudo forces also play a very important role like the above shaded forces. ठीक है, तो how many forces that we have to remember in this chapter? 1 2 3 4 5. okay, कितने फोर्सेस हमें याद रखने होंगे बेटा? 5 forces that we have to remember. Okay, chalo, let's discuss about them in detail. The muscular force, that you already know, I'm not going to discuss in great detail. The second point is what? Gravitational force. Okay, gravitational force को हम लोग थोड़ा सा एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पर. जैसे हमें कौन कौन से फोर्सेस याद रखने हैं? पहला, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स. That is also called what? Weight. क्या बोलते हैं इसको? Weight. That is mass into gravitational acceleration. Okay? ये फोर्स सबसे पहले आपको चेक करना होता है. दूसरा, आपको नॉर्मल रिएक्शन चेक करना होगा. That is normal reaction force. ठीक है. Third one is tension force. Fourth is normal reaction हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया. फोर्थ बताओ जल्दी से, अभी एक और नाम मैंने बताया था, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स. एंड फिफ्थ इज pseudo force. ठीक है, so basically we have to remember the 4 forces. The first of all, this is a non-contact force, that is weight. These are the
थ्री कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें से दो जो हैं वो नेसेसरली तब लगेंगे, हमेशा ही लगेंगे, लेकिन ये वाला तब लगेगा जब सरफेस कैसा हो, रफ सरफेस हो, ठीक है। और स्यूडो फोर्स लगने के लिए एक अलग कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन, दैट आई विल लेट यू नो। ओके, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज कॉल्ड वेट। तो इसे हम कहते हैं क्या, mg, है ना। कोई भी बॉडी है ना, जैसे देखो यहां पर मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, हमारे पास ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, और इट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, लेट्स सपोज दिस इज द टेबल, ठीक, ये टेबल हो। हमें टेबल को कंसीडर अगर करना है, अगर इसका मास दिया गया तो ठीक है, लेकिन मान लो हमने मास दिया गया किसका, इसका दिया गया m1 और इसका दिया गया क्या मास, m2। तो जिन जिन ऑब्जेक्ट्स का मास दिया गया है, जो बेसिकली लॉज ऑफ मोशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द वेट। अगर टेबल का मास नहीं दिया गया तो अननेसेसरली आपको जरूरत नहीं है परेशान होने के लिए, ठीक है। तो हियर दैट मास ऑफ द टेबल इज नॉट गिवन, means you don't have to find out the weight of the table. Okay, fine। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले बताओ कि अगर हमारे पास यहां पर सिंगल कोई एक ऑब्जेक्ट होता जो कि अर्थ सरफेस पर होता, एंड दिस इज द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, तो बताओ ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आपका कौन सा फोर्स लगता है बेटा, इसका वेट लगता कि नहीं लगता, बता। दैट इज m इंटू जी। बोलो, ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको। तो सबसे जरूरी चीज है क्या, कि ये वेट जो है वो किस पर लग रहा है, किस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास हम लोगों ने लिया उसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा क्या, फोर्स, दैट इज कॉल्ड वेट। दिस फोर्स इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द अर्थ, अर्थ ने अप्लाई किया है, ठीक है। इफ वी विल अज्यूम दिस एज एन एक्शन फोर्स, सो व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑन द अर्थ, so the on the earth you will get the reaction as well। और अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि what is the value of reaction, तो reaction will also be equals to mg। always remember every action is equals to reaction, so the value will be same, m into g। बोलो बात समझ में आया। अब यहां पर हमें समझ में आ गया कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, मगर इस केस में अगर देखा जाए तो यहां पर आपका जो ये वेट है m1, ठीक है, m1 का वेट किस पर लगेगा, केवल m1 पर लगेगा, जिसे हम m1g बोलेंगे। m2 का वेट किस पर लगेगा, m2 पर लगेगा, m2g बोलेंगे। मतलब अगर मैं m1 का डायग्राम अलग बना लूं और m2 का डायग्राम अलग बना लूं, तो मैं कहूंगा क्या कि m1 पर अभी कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल दैट इज m1g इसका वेट, और इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, दैट इज m2g इसका वेट। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी बेटा तुम लोगों को? सर आ रही है। हाँ, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। यस सर। हाँ, तो दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज रिमेंबर दैट विल हैव अ डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव एन इंक्लाइंड प्लेन, लेट्स सपोज दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, ओके, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमारा मास m। तो बताओ इसका वेट किधर काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा या फिर इस डायरेक्शन में काम करेगा, फर्स्ट या सेकंड? एनीवन, फर्स्ट और सेकंड? Second. Second. Why? Because the direction of weight is always vertically downward. Always remember it will be vertically downward. Okay? So this is the correct answer. The second point is normal reaction force. This is going to be very important force, normal reaction। Normal का मतलब क्या हुआ, perpendicular। तो ये क्या बताएगा, परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर किसके, टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और या फिर कह सकते हो क्या कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट, सरफेस
में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर सरफेस के लगेगा। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक बोल है, बोल समझते हो सभी लोग, ऐसा, ठीक है, और इस पर एक बॉल रखा हुआ है, किस टाइप का, स्फेरिकल शेप का, ठीक है। तो ये दोनों कांटेक्ट में कहां पर है बेटा, एट दिस पॉइंट दे आर इन कांटेक्ट, ओके। सो द रिएक्शन फोर्स दैट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, मतलब यहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा बेटा, सेंटर, है ना, बोलो किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ, क्योंकि देखो किसी भी स्फेरिकल शेप बॉडी में जो रेडियस होता है वही क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। तो ये बात समझ में आ गया, पहली चीज। yes sir, दूसरा कि ये जो है ये एक हर एक उस जगह पर लगेगा जहां पर कांटेक्ट होगा, जहां पर भी दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होगा, द नॉर्मल रिएक्शन इज देयर, नॉर्मल रिएक्शन वहां पर होगा ही होगा। नॉर्मल रिएक्शन कहां पर होगा, जहां पर भी बॉडी में कांटेक्ट हो, ठीक है। जैसे यहां पर बॉडी में कांटेक्ट है, ये है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक ये है एंड दूसरा ब्लॉक ये है, तो कितनी जगहों पर कांटेक्ट है जरा तुम मुझे बताओगे। लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज द सेकंड ब्लॉक एंड दिस इज द टेबल। तो बताओ फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक से कितनी जगह पर कांटेक्ट में बेटा, ओनली एट दिस पॉइंट, मींस यहां पर जो होगा वो क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। रिएक्शन किस पर होगा, फर्स्ट पर रिएक्शन होगा, तो भाई एक्शन किस पर होगा, इस पर होगा, और दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। बोलो बात समझ में आई। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन एट 1 ड्यू टू 2 और रिएक्शन एट 2 ड्यू टू 1, मींस बोथ आर इक्वल। Similarly, we can say कि this second object is in contact with the first one, मतलब with the table, sorry। तो टेबल क्या करेगा, इस पर एक रिएक्शन लगाएगा, तो टेबल पर भी क्या लगाएगा, एक रिएक्शन लगाएगा। तो रिएक्शन ऑन टेबल ड्यू टू सेकंड, रिएक्शन ड्यू टू टेबल ऑन सेकंड। बोलो बात समझ में आया। R12 की वैल्यू किसके बराबर है, R21, दैट इज लेट्स सपोज R1, और R2t इज इक्वल्स टू RT2, दैट इज लेट्स सपोज R2। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो दूसरी चीज आपको पता चलनी चाहिए कि हर एक जगह पर कांटेक्ट में है। और तीसरा, इट ऑलवेज फॉलो द एक्शन रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। मतलब रिएक्शन अगर एक बॉडी पर लग रहा है तो एक्शन दूसरी बॉडी पर लगेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर बॉल में ये ऑब्जेक्ट है, तो इस बॉल पर जो रिएक्शन लग रहा है वो किधर लगेगा, टुवर्ड द सेंटर, और बॉल पर भी क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं दोनों को अलग अलग बना दूं तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा क्या, कि इस बॉल पर रिएक्शन लगा यहाँ पर, और इस बॉल पर रिएक्शन किधर लगेगा, यहाँ ऊपर की तरफ लगा। बोलो बात समझ में आ गई। दोनों ही बॉडीज पर अलग अलग फोर्सेस लगेंगे। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई बेटा। तीन इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना, पहला परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट, थर्ड कॉन्टैक्ट फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, तो एक्शन रिएक्शन को फॉलो आपको यहाँ पर कराना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सी, ये हो गया क्या, एक ऑब्जेक्ट हमारा पहला हुआ और दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक्शन रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सी। सबसे पहले आपको क्या देखना था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेट देखना है। तो भाई देख, वेट दोनों का काम करेगा ना, इस ऑब्जेक्ट पर इसका वेट काम करेगा, लेट्स सपोज इट्स मास इज m1, इट्स मास इज m2, तो यहाँ पर m1 वेट m1g काम करेगा, और दूसरे वाले पर कौन सा वेट काम करेगा बेटा,
इसका अपना वेट काम करेगा m2g। ठीक ना, यहां पर हमने कहा क्या कि एक्शन रिएक्शन की बात चल रही है, तो एक्शन कौन करेगा? इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है यहां पर, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, सॉरी ऊपर की तरफ किस पे लगेगा, ध्यान रखना, ऊपर की तरफ किस पे लगेगा, इस पर लगेगा ऊपर की तरफ, दैट इज व्हाट, रिएक्शन फोर्स। और ये क्या करेगा, इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, दैट इज आर। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग डायग्राम में बना दूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे ये जो छोटा वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स किधर लग रहा है बेटा, m1g, और रिएक्शन किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है r। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, क्या इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स कितना लग रहा है, m2g, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, r। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है ना बेटा, रेस्ट में होने का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, मींस नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, मींस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। मतलब यहाँ r किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। अब यहाँ पर दूसरे वाले केस में अगर सेकंड केस की बात करते हैं, व्हाट इज द सेकंड केस, तो सेकंड केस में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो दोनों ही फोर्स किधर लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी कि m2g और प्लस r बोथ आर एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, लेकिन यहां पर जब आप टेबल रखोगे नीचे, तो दैट टेबल विल अप्लाई अ रिएक्शन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, r2 let's suppose, and table will also experience the same force, that is r2. So that r2 must be equals to what, m2g plus r, or you can say m2g plus m1g, that is m1 plus m2g, that is r2। समझना मेरी इस बात को, r2 क्या निकल के आया, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेबल। तो टेबल किसका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दोनों का एक साथ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना बेटा, दोनों का वेट एक साथ एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ, m1 प्लस m2g। तो अल्टीमेटली तो यही एक्सपीरियंस करना है, बट हाउ, बाय दिस प्रोसेस, बाय अप्लाइंग। तुम्हें हर एक फोर्स के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, एक्शन रिएक्शन। तो दो टाइप फोर्स आपको समझ में आ गया, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, नॉर्मल रिएक्शन और वेट बेटा? Yes, sir. See, the next force is that is called what, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स के बारे में कुछ चीजें जानकारी रखनी है। सबसे पहली चीज, ये किसी भी स्ट्रिंग में लगता है, ठीक है, और स्ट्रिंग में अगर आपके पास सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग, तो उसमें सिंगल टेंशन लगेगा, सिंगल टेंशन। मतलब क्या हुआ कि आपके पास जब तक स्ट्रिंग नहीं बदलती है, तो उस पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पर टेंशन फोर्स क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और टेंशन फोर्स हमेशा इट ट्राइज टू पुल द कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर क्या है, एक मासलेस पुली है, और इस पुली में यहाँ पर एक मास लगा हुआ है और यहाँ पर एक दूसरा मास लगा हुआ है, ठीक है, दैट इज m1, दैट इज m2। m1 की वजह से इसका वेट किधर काम करेगा, m1g, यहाँ किसका वेट काम करेगा, m2g। अब चूंकि ये स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग, नाउ दिस स्ट्रिंग इज एक्चुअली सिंगल स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग तो है, विच इज कनेक्टेड विद द बोथ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ और यहाँ पर। तो जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां पर भी आप बोल सकते हो दीज आर द टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स विद द pulley and this is connected with some support. So at the point of contact it will always try to pull the connected objects। pull का मतलब क्या, अपने डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यहां पर। Are you getting this? So the tension force is T T T T, but if we talk about single tension single pulley का मतलब क्या हुआ कि भाई सिंगल स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि इस स्ट्रिंग में हर एक जगह पर टेंशन की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। बोलो बात समझ में आया? थोड़ा सा और डिटेल में चल लेते हैं।
how many tension strings are there? This is the first string, this is the second string. So we can suppose the tension in this string T1, तो in this string you can suppose it is T2. बोलो बात समझ में आया बेटा? So when the tension or we can say string will change, the tension will also change. Okay, let's take another example. This is a block which is connected with a string. यहां पर एक पुली लगी हुई है और यहां पर एक ब्लॉक है। बताओ इस ब्लॉक का वेट किधर काम करेगा बेटा? mg काम करेगा नीचे, मान लो m1 नाम है इसका, दैट इज m1g। इसका वेट किधर काम करेगा? लेट सपोज m2g। ओके, अब जरा तुम मुझे बताओ कि ये जो स्ट्रिंग है दे आर एक्चुअली इन कांटेक्ट वेयर? एट दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। यहां पर जो फोर्स लगेगा टेंशन वो किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। इन दोनों पॉइंट्स पर फोर्स किधर लगेगा टेंशन की वजह से? यहां पर लगेगा और यहां पर लगेगा। ठीक, तो अगर मैं केवल और केवल ये पूछूं बेटा कि इस ब्लॉक मास m1 पर कितना फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक मास m1? तो देखो एक फोर्स यहां लग रहा है क्या? m1g, और दूसरा क्या लग रहा है? टेंशन T लग रहा है। ठीक है, m1g और इसके अलावा क्या लगेगा? क्योंकि ये कांटेक्ट में है यहां पर, तो दिस विल अप्लाई अ रिएक्शन फोर्स एज वेल R। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? नो, सो दीज आर गोइंग टू बी इक्वल, मींस R इज इक्वल्स टू m1g। बोलो बात समझ में आया? एंड दिस टेंशन इज द नेट फोर्स एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना? तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो इफ वी विल अप्लाई अ नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कैन वी एक्सपेक्ट एन एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन? Definitely yes, because net force is equals to what? M into A. So we will try to apply this equation in further discussions. Okay, अभी फिलहाल तुम्हें force apply करने आना चाहिए। Are you getting this? How to apply the tension force in a string? बोलो बेटा, सभी को समझ आया? हाँ। Now, the friction force that we have to discuss. The friction force is a force act between the contact। किसके किसके बीच में काम करता है बेटा? कांटेक्ट के बीच में काम करता है। जैसे देखो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज इट्स मास इज m1, इट्स मास इज m2। इन केस द surface of contact like this surface, this is a rough surface। कैसा surface है बेटा? ये एक रफ सरफेस है। किसके साथ? ऊपर m1 के साथ। तो दिस रफ सरफेस विल अप्लाई अ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, पहला कंडीशन क्या? देयर शुड बी द फर्स्ट कंडीशन, इट शुड बी अ रफ सरफेस। द सेकेंड कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट? There should be a relative motion in between the objects। और ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर वाला, इसमें कुछ मूविंग टेंडेंसी होनी चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? जिस सरफेस पर ये रखा हुआ है। तो there should be a moving tendency। moving tendency। Why I'm telling this moving tendency, है ना? और we can say relative moving tendency। relative moving tendency between the rough surface and the bodies। जब तक ये relative moving tendency नहीं होगी, आपका friction force active नहीं होगा। friction force active नहीं होगा कब तक? जब तक moving tendency नहीं होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि friction force होता कितना है ना? तो that friction force actually depends on two factors। The first, nature of surface, how rough it is, and the second is the normal reaction force। normal reaction force कौन सा normal reaction force? acting between the same contact। मतलब क्या हुआ सर? between the same contact का मतलब क्या हुआ कि भाई अब जरा यहां पर ध्यान से देखते हैं हम लोग कि
ये जो सरफेस है जो कि कांटेक्ट में है, तो इन कांटेक्ट की वजह से एक रिएक्शन फोर्स इस पर लगेगा, लेट सपोज R1, तो उतना ही फोर्स इस पर भी लगेगा ना R1। तो इस R1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। और नेचर ऑफ सरफेस का मतलब क्या होता है, एक कोफिशिएंट से होता है जिसे हम लोग फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। सो नेचर ऑफ द सरफेस इज डिपेंड लाइक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, दैट इज म्यू के एंड म्यू एस। इसे कहते हैं क्या, काइनेटिक friction, and this is known as static friction. Static friction का मतलब क्या, before the motion में tendency है, body is trying to move but it is not moving, तो before the motion the force or the friction force is just because of this static friction coefficient, while when the body gets into the motion, so the force is due to the kinetic friction. ओके, तो दो बातें, किस पे डिपेंड करता है, म्यू पर, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, आर पर। सो सिंपली वी कैन से द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एन कह सकते हो या म्यू इनटू आर भी कह सकते हो, ठीक है। तो सर म्यू इनटू आर बोलने से तो आपने यहाँ पर स्टैटिक बताया और काइनेटिक बताया, दोनों के बारे में जरा बताइए। यस, द स्टैटिक फ्रिक्शन is equals to mu s into normal reaction. The kinetic friction is mu k into normal reaction. पहली चीज। अब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है। स्टैटिक फ्रिक्शन से जो आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हो दोनों की वैल्यूज रख के, वो आता है क्या, द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट could be applied on the object, जो इस पर अप्लाई हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू ये हो गई कौन, म्यू एस इंटू एन, ठीक है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। आपको पता चल गया फ्रिक्शन फोर्स कभी भी आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इंटू एन होगा। फ्रिक्शन कितने तरीके का हो, दो तरीके का होगा, एक काइनेटिक एक स्टैटिक। अब जरा ध्यान से समझना है यहाँ पर, लेट सपोज इट्स मास इज 10 kg, let's suppose, second is its mass is 20 kg, okay, the friction coefficient is static in between them is 0.3, कितना बेटा, 0.3, always remember, नोट में यहाँ पर याद दिला दूं, the friction coefficient is always between 0 to 1, हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक, 1 नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है। 0 होने का मतलब क्या हो गया, इफ इट इज एग्जैक्टली 0 दैट इज अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो पहली चीज मैंने क्या बताई यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो, m1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 kg, m2 इज इक्वल्स टू 20 kg, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 3। सी, दिस इज द ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज द लोअर, दूसरा ब्लॉक। कौन कौन से फोर्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं, फर्स्ट ग्रेविटेशनल, दैट इज mg, फर्स्ट प्रेजेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज m2g, दैट इज 20 into 10, वी कैन से सर इट इज 200 न्यूटन, ओके। यहाँ पर mg कितना लग जाएगा बेटा, m2g कितनी हो जाएगी m2g की वैल्यू, सर 10 into 10, लेट्स सपोज दैट इज 100 न्यूटन, ओके फाइन। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, चूंकि ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस है तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगना चाहिए, है ना, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू F max, that is also called limiting friction, that is mu s into normal reaction। नॉर्मल रिएक्शन किसके बीच में, भाई ये दोनों कांटेक्ट में है, तो दिस सेकेंड ब्लॉक विल अप्लाई a normal reaction on this, n, और फर्स्ट वाला दूसरे पर कितना लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। तो इसकी बात हम लोगों ने कर ली, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लग रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन। सी, दिस इज द ब्लॉक फर्स्ट, इसका वेट कितना काम कर रहा है, 100 न्यूटन, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग गया, n, बट क्या ये वर्टिकल मोशन में है, नो, hence we can say n must be equals to what, 100 न्यूटन,
तो normal reaction is what? 100 Newton. What is the value of friction coefficient here? 0.3. So F max has a value that is 0.3 into 100. That you can get, sir, 30 Newton. Sir, this 30 Newton is the maximum force, maximum friction that can act. ठीक है, फिलहाल अभी के लिए यहां पर क्या इसके अंदर कोई मूविंग टेंडेंसी है? No, it is just placed on the surface. So is there any friction acting on this? No. Okay, see, ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी रेस्ट में है, तो यहां पर कोई फ्रिक्शन काम कर रहा है? नहीं। लेकिन मान लो कि हमने यहां पर थोड़ा सा फोर्स F लगाया, और कितने न्यूटन का लगाया? 10 न्यूटन का लगाया, ठीक है। तो पीछे की तरफ मैक्सिमम कितना फोर्स लग सकता है? जिस डायरेक्शन में मोशन होता है या मूविंग टेंडेंसी होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है बेटा? फ्रिक्शन लगता है, याद करना। फ्रिक्शन कितना लगाया जा सकता है? 30 न्यूटन। बट क्या अभी ये जो फ्रिक्शन है वो 30 न्यूटन लग रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मूविंग टेंडेंसी अप्लाई करने वाला फोर्स है वो कितना है? 10 न्यूटन। तो अगर ये 10 न्यूटन है तो यहां पर भी फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन। तभी तो ये रेस्ट में रहेगा बेटा, बोलो। आपने 10 न्यूटन यहां पर लगाया, फ्रिक्शन इधर की तरफ कितना लग गया बेटा? 10 न्यूटन के बराबर। क्यों? क्योंकि इसको मोशन नहीं करना है। ओके, आपने क्या किया? इस पर फोर्स लगा दिया 29 न्यूटन, है ना। यहां पर लग कितना सकता है? 30, लेकिन लगा कितना अभी फ्रिक्शन? सर 29। आपने क्या किया? यहां पर इस पर लगा दिया 30 न्यूटन, तो इस पर कितना लग जाएगा? 30 न्यूटन। ओके, लेकिन इन केस आपने 30 न्यूटन से थोड़ा भी ज्यादा किया तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ तो मैक्सिमम कितना लग सकता था? 30 न्यूटन ही, जो कि लग चुका है। और यहां पर मान लो 31 न्यूटन आपने लगाया, तो नेट फोर्स इस पर अब कितना हो गया बॉडी पर? सर 31 फॉरवर्ड और 30 बैकवर्ड, दैट इज 1 न्यूटन। सो दिस 1 न्यूटन नेट फोर्स is in this direction, and due to this net force the body will start moving, but till 30 Newton it is not going to move, and this is the reason why this is known as maximum friction or limiting friction. Limiting means जब तक ये बॉडी जो है मूव ना करे, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ गया बेटा इतना? Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, फ्रिक्शन फोर्स लगाना आपको समझ में आ गया, इसका मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।